Today I stand before you to express the searing pain and anguish of the people of Pakistan at the plight of the people of Gaza. Our heart bleeds as we witness the tragedy unfolding in the Holy Land. Can we, as human beings, remain silent while children lie buried under the rubble of their shattered homes? عالمی برادری سے پائیدار امن کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ، مذمت کافی نہیں، بڑے ممالک حرکت میں آئیں، آگ و خون کا کھیل بند کرائیں، فلسطین کو فوری اقوام متحدہ کے مستقل رکن کی حیثیت دی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی اور بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے، فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کو نظر انداز کرنے والے کیا انسان کہلانے کے قابل ہیں؟ فلسطینیوں کے گھر ملبے کے ڈھیر بن گئے، دنیا آنکھیں کیسے بند رکھ سکتی ہے؟ پاکستانی عوام کے دل فلسطینی بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اب لبنان میں اسرائیلی جارحیت شروع ہو گئی ہے، خطے میں بڑی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا۔ Like the people of Palestine, the people of Jammu and Kashmir too have struggled for a century for their freedom and right to self-determination. Instead of moving towards peace, India has resiled from its commitments to implement the Security Council resolutions on Jammu and Kashmir. Since the 5th of August 2019, India has initiated unilateral illegal steps. مقبوضہ کشمیر میں بھی بھارت کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ کشمیریوں سے حق خود ارادیت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنرل اسمبلی میں خطاب، کہا مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی مذموم کوشش جاری ہے۔ بھارت کے جارحانہ عزائم سے خطے کے امن کو خطرات لاحق ہیں۔ بھارتی جبر کے باوجود کشمیری برہان وانی کے نظریے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ یوکرین جنگ نے بھی عالمی مسائل پیدا کیے۔ موجودہ حالات میں دنیا کو بے پناہ چیلنجز کا سامنا ہے۔ For 2 decades, Pakistan has fought terrorism boldly and most successfully, defeating terrorist groups within Pakistan. We have paid a very heavy price. Memories of APS school carnage haunt us till date. Today, we are again confronted by a new wave of externally financed and sponsored terrorism, especially by the TTP. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بھاری قیمت ادا کی۔ ہمارے بہادر جوان، بچے اور شہری اس ناسور کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب میں بھارت کو بھی سخت پیغام، کہا پاکستان بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ بھارت کے اوچھے ہتھ کنڈے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ دہشت گردی صرف پاکستان نہیں، دنیا کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران شور شرابہ، اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں نیتن یاہو کے خلاف نعرے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے خطاب کے لیے آنے پر پاکستانی وفد نے اجلاس سے واک آؤٹ کر دیا۔ نیتن یاہو نے اپنے خطاب کے دوران ہاتھوں میں 2 نقشے اٹھا رکھے تھے۔ ایک کا عنوان تھا لعنت، جس میں ایران کا نقشہ تھا، جبکہ دوسرے کا عنوان تھا رحمت، جو اسرائیل کے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کی منظر کشی کر رہا تھا۔ عالمی برادری بھی اسرائیل کو لگام ڈالنے میں ناکام، صہیونی بربریت تمام حدیں پار کر گئی۔ غزہ میں 24 گھنٹوں میں مزید 36 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ جبالیہ میں رہائشی عمارت اور اسکول پر بمباری، 19 فلسطینی جان سے گئے۔ صہیونی فوج نے غزہ سٹی میں الاقصی اسپتال کو بھی نہ چھوڑا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 41,534 ہو گئی۔ امریکہ نے غزہ اور لیبنان میں قتل و غارت گری کے لیے اسرائیل کو مزید 8 ارب 70 کروڑ ڈالر کی فوجی امداد فراہم کر دی۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو فوجی امداد فراہم کرتا رہے گا، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ لیبنان اور غزہ میں کیا ہو رہا ہے۔ یمنی فوج کے تل ابیب پر ایک ہی روز میں 2 حملوں میں 17 صہیونی شدید زخمی، شہریوں میں خوف و ہراس۔ میزائل حملہ ہوتے ہی صہیونی شہری اپنی گاڑیاں چھوڑ کر فرار، کئی سڑک پر ہی لیٹ گئے۔ تل ابیب سائرن کی آوازوں سے گونج اٹھا، ایئرپورٹ بند، پروازیں معطل، ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی۔
लेबनान पर इसराइली मजालिम का 5वां रोज। नबातिया, बीका वादी और यूनियन टाउन समेत कई इलाकों पर सेहूनी हमले। 24 घंटों के दौरान 92 शहरी शहीद, 153 से जायद जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 700 से तजावुज कर गई। इसराइल की बमबारी से लेबनान में अस्पताल, रिहायशी इमारतें और आबादियां कुछ भी महफूज न रहे। वज़ीर आज़म का मसरूफ तरीन दौरा अमरीका। न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं के साथ बैठकें, ईरानी सदर और इराक़ी वज़ीर आज़म से अलहदा मुलाकातें। मसूद पज़ेश्कियान से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का बाहमी हिमायत और शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने और फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का आदा। मोहम्मद शिया अल सुदानी से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और इराक़ के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को खुश आइंद करार दिया। KP शर्मा ओली के नेपाल की वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में पाकिस्तान और नेपाल में तिजारती इक़्तिसादी शोबों में ताउन को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की पहली किस्त मौसूल हो गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किस्त मौसूल होने की तस्दीक कर दी। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब मंजूर किए थे। 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख डॉलर्स मौसूल हो गए। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों का फैसला मफरूजों पर मबनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी केस में इजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। तफसीली फैसले में अदालत ने 41 अरकान को तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दिया। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज बदल दिया। आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बयान हल्फी जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से फैसला पर अमल रोकने की इस्तदा भी कर दी। आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान, नून लीग और MQM समेत तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। तनाज़ा सिर्फ आईनी अदालतों के क़याम के हवाले से खदोखाल का है। बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुत्तफिक नहीं, फैसले पर उठाए गए तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। मेरी दानिश में फैसला इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। तहरीक इंसाफ का कोई सेनेटर हुकूमत से राबते में नहीं। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज कहते हैं, मुल्की मफादात के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए। शेख वक्कास अकरम बोले, PTI आईनी तरमीम की राह में दीवार बनेगी। फॉर्म 47 वालों को खास मकसद के लिए लाया गया है। ये लोग आर्टिकल 63A को निशाना बनाना चाहते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस पर मुकम्मल तौर पर उस दिन जब वो गए थे बार में, तो उन्होंने तमाम सवालात के जवाब मुफस्सल तौर पर तफसील से दिए हैं कि आइनी कोर्ट्स जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, ये इस वक्त बहुत अहम हैं, उनकी ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर आईनी अदालत को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, आईनी तरमीम से मुतालिक बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ वाज़ेह है। मौलाना फजलुर रहमान, हमारे लिए काबिल एहतराम है। किसी पर्दे वाहिद के लिए कानून साजी नहीं होगी। आम आदमी को इंसाफ के लिए तवील इंतज़ार करना पड़ता है। मुतवक्की आईनी तरमीम के खिलाफ PTI वकला का सुप्रीम कोर्ट गेट से पार्लियामेंट हाउस तक एहतजाजी मार्च। आईनी इस्लाहात के खिलाफ नारेबाजी। वज़ीर आज़म हाउस के सामने भी नारे लगाए। एहतजाज के बाद सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी सख्त। इस्लामाबाद पुलिस FC एलीट फोर्स सिक्योरिटी पर तैनात। आर्टिकल 63A से मुतालिक नज़रसानी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुक़र्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को समाअत करेगा। नैब तरमीम के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त बाज़ाब्ता समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर मुआवनत के लिए तलब कर लिया। सदारती ऑर्डिनेंस हंगामी सूरत हाल में ही जारी हो सकता है। तरमीम PTI के बानी पर दबाव डालने के लिए की गई। ऑर्डिनेंस का इजरा सियासी मकासद के लिए किया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाइल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक सिपाही सलार को पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों तरबियती उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने नुवेस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह भी किया। आर्मी चीफ का कहना था कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना मकाम हासिल करेगा। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में काबिल ज़िक्र सलाहियत रखता है। सबको पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और इमादीन ने तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने मईशत में IT की अहमियत पर भी जोर दिया।
सूबाई हुकूमत की दहशत गर्दी के खिलाफ मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान है। उनको बस जलसा, धरना और नाच गाने का ही पता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल को मखदूश करार दिया। बोले सवाबी धमाके का शॉर्ट सर्किट से हुआ या किसी और वजह से तहकीकात होनी चाहिए। PTI का सबसे बड़ा कारनामा BRT की करप्शन है। हेल्थ का सत्यानाश है। सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया है। अम का क़याम सिर्फ सूबे की नहीं वफाक की भी जिम्मेदारी है। मुशीर इत्तलात KP के बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पूरे सूबे में अमन कायम करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। बॉर्डर से दहशतगर्द यहाँ आकर दहशतगर्दी करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। मौलाना साहिब के पीछे नमाज पढ़ने का ये मतलब नहीं कि उनकी हर बात मानेंगे। अफगान तालिबान के पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस होने के मजीद सबूत सामने आ गए। फितने अल खवारिज का एक और दहशतगर्द पाक फौज की कार्रवाई में हलाक। मारे गए दहशतगर्द से अफगानिस्तान का शनाख्ती कार्ड बरामद। शनाख्त जलाल वल्द नेमतुल्लाह के नाम से हुई। उमरकोट के डॉक्टर शाहनवाज कुंबर की जाली पुलिस मुकाबले में हलाकत। अभी तक मुकदमा दर्ज न हो सका। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की जाली मुकाबले की तस्दीक के बावजूद पुलिस अफसरान और अहलकार अब तक आज़ाद। वजीर दाखिला सिंध ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि अगर मकतूल की फैमिली FIR नहीं कराती तो रियासत FIR कटवाएगी। अरशद पप्पू कत्ल केस में अहम पेशरफ। मुकदमे के अहम गवाह साबिक तफ्तीशी अफसर DSP बगदादी का आधा बयान कलमबंद। वकला की DSP बगदादी का बाकी बयान आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड करने की इस्तदा मंजूर। अदालत का आइंदा समाअत पर तमाम मुल्ज़िमान को पेश होने का हुक्म। समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी। कराची ऑपरेशन के असरात ज़ाइल। शहर में फिर खौफ के साए। औरंगी में ताजरों को भत्ते की पर्चियां और फोन कॉल्स आना शुरू। जो पैसे नहीं देगा मारा जाएगा। भत्ताखोरों की वार्निंग। औरंगी 11:30 में भत्ताखोरों ने पहले ताजर को गोलियां मारी, फिर भत्ते की पर्ची भेजी। इकबाल मार्केट पुलिस की अदम दिलचस्पी पर ताजरों का कारोबार बंद करने का फैसला। ताजरों का कहना है कि गोली से मरने के बजाय घर में भूखा मरना बेहतर है। लाहौर में डाकू राज बरकरार। शहरी घर की दहलीज पर भी गैर महफूज। थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके में मोटरसाइकिल सवार डाकू मियां बीवी से गन पॉइंट पर लाखों मालियत के तलाई जेवरात, 42,000 नकद और मोबाइल फोन छीन कर फरार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। फैसलाबाद की जौहर कॉलोनी बन गई। बच्चे बारिश के पानी में तैरने लगे। इंतजामिया इलाके से पानी के निकास में नाकाम। चिन्योट में बारिश ने पूरा शहर ही बदल डाला। DC और DPO ऑफिस में पानी भर गया। चूनिया में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के बाद शाहराएं तालाब का मंजर पेश करने लगी। झंग, शोरकोट, अहमदपुर, सियाल, गढ़ महाराजा और गिरदोनवा में सर्द हवाएं चलने लगी। ननकाना साहिब, शाहकोट, सैयदवाला में भी आसमान पर स्याह घटाएं छा गईं। सरसब्ज वादियां, हसीन नज़ारे, बर्फ से ढके पहाड़ और बलखाते दरिया। दुनिया भर में सयाहत का दिन आज मनाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में दिल फरेब मनाजिर सयाहों को अपनी तरफ खींचने लगे। हर मौसम में सूबे के सयाहती मकामात सयाहों से आबाद रहते हैं। रवा साल के 9 माह के दौरान 1,98,87,517 सयाहों ने सयाहती मकामात का रुख किया। T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट। पाकिस्तानी वुमेन्स क्रिकेट टीम की दुबई के ICC एकेडमी ओवल 2 ग्राउंड में प्रैक्टिस। कौमी वुमेन टीम कल स्कॉटलैंड के खिलाफ पहला वार्म अप मैच खेलेगी। पाकिस्तान टीम का दूसरा वार्म अप मैच 30 सितंबर को बांग्लादेश से होगा। और माजी के मारूफ गुलकार मुनीर हुसैन को बिछड़े 29 बरस बीत गए। मुनीर हुसैन ने 200 से जायद गीत रिकॉर्ड कराए। सुरीली आवाज में गाए उनके गीत आज भी पुरस्कार नहीं भूले।